घोर शोरमभिहरा. नमस्कार, वेलकम एवरीवन. वी आर सो सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच. संगीत के बारे में बात कर रहे थे और हम कह रहे थे कि संगीत एक ऐसी कला है जो एक धागे के समान है, जो अलग-अलग किस्म के लोगों को ऐसे अलग-अलग मोतियों की तरह पिरो कर एक मूल्यवान गहने का रूप दे देती है. और हम बात कर रहे थे कि इस बात का प्रमाण आज यहाँ पे आए हुए आप सभी लोग हो, जो समय, देश और भाषा के दायरे को लांघ कर इस मंच पर आज इकट्ठे हुए हैं. So as Rasipa moves into its 12th year, I will be so honored to say that we're excited to celebrate it with you all. And I know I'm speaking on everyone's behalf when I say that we are truly blessed today to have amongst us the virtuosos who started it all, Padma Bhushan's Pandit, Rajan and Sajan Mishra ji. Pranam to both the Gurujis. Great, now we can hear you and see you perfectly. वैसे तो आपका परिचय देने की मेरी कोई भी हस्ती नहीं है, पर आज इसे अपना सौभाग्य समझकर मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी. आप दोनों का जन्म वाराणसी में संगीत से भरे परिवार में हुआ. श्री बड़े रामदास जी मिश्रा, आपके पिता, श्री हनुमान प्रसाद मिश्रा जी और चाचा श्री गोपाल प्रसाद मिश्रा जी जैसे दिग्गजों की छाया में रहकर आपने संगीत सीखना शुरू किया. ऐसा कहा जा सकता है कि संगीत आपको विरासत में मिला, लेकिन इस विरासत को संजो के रखना और इसकी शोभा में 4 चाँद लगाने का पूरा श्रेय आप दोनों को जाता है. और शायद मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि रसिपा के माध्यम से आपने हम सबको भी इस विरासत का एक छोटा-सा भागीदार होने का मौका दिया है. Today, Pandits Rajan and Sajan Mishra ji are not only the pioneers of Banaras Gharana, but are at an unparalleled stature when it comes to Indian classical music at the global level. I also must share that Gurujis belong to the 5th generation of musicians in their family, a proud tradition that was taken forward by their sons, Sri Ritesh Mishra, Sri Rajneesh Mishra, and Sri Swaransh Mishra ji. Now, their granddaughter, a young and vibrant Radhika Mishra, is all set to carry forward this legacy, becoming the 7th generation artist from their family. A very warm welcome to both the Gurujis and everybody present from the Guru Parivar. Before we delve into this musical evening, I would like to call upon the torchbearer of Rasipa and a mentor to many of us, Mrs. Seema Agarwal. May I please call you to say a few words? Okay. Thank you so much, dear Artika. Well, meeting up on Zoom has become the new normal of today. A very warm welcome to Reverend Gurujis, Gurukul family, Rasipa family, and all our guest viewers from around the globe who have joined us today for this Kisse Sune Ansune. I am absolutely privileged and indebted to Ritesh ji, Rajneesh ji, Swaransh, and the relentless team doing hard work always of my Rasipa family, who have constantly stood with me as a backbone to make Rasipa grow, make it reach to this 12th year milestone. They have walked me through these glorious years for the service of music in the city of Saharanpur. Before I continue, I would recite a small verse from Osho. Everything starts with love. Remember, love is the ultimate law. Then prayer, mercy, grace follow of their own accord. Along with the holistic musical education that we have been receiving, which has been cascading in Gurukul, such is the morning sermon we receive from our Gurujis every morning, which helps build every disciple with not only music, but their personal intellect creates a better world around us.
अब मैं अपने गुरुजनों का स्वागत एक कुछ नए अंदाज से करना चाहती हूँ। कौनो भूल चूक होई तो ओके क्षमा करे। वाह! आज हमहू कोशिश करब कि बनारस की मीठी बोली में आप सबही लोगन का स्वागत करें। सबसे पहले दोनों गुरुजी, दोनों गुरबानी जी, अपने दोनों गुरुजी लोगन के पा लागी और जी, और गुरु परिवार के सबही लोगन जो हमके 22 साल से स्नेह, प्रेम और अपनापन दीना और अपने परिवार जैसा मनना ओकर हम दिल से धन्यवाद करीला। राह जीवन की जिससे शुरू है वही तो गुरु है। गुरु की ऊर्जा सूर्य सी, अंबर सा विस्तार, गुरु की गरिमा से बड़ा नहीं कहीं आकार। गुरु का सद सानिध्य ही जग में है उपहार। शिष्य को क्षण क्षण घड़े मूरत हो तैयार। आदर्श हैं आप हमारे, हमें आपका दर्पण। कर दिया आपने हम पर सारा जीवन अर्पण। खुद बनकर दीपक जले, हमारा जीवन किया रोशन। कुछ दे नहीं सकते आपको, बस करते श्रद्धा सुमन अर्पण। श्रद्धा सुमन अर्पण। Over to you, Artika. Can you please begin the program? Very beautifully spoken, आंटी। गुरुजी, आपकी आज्ञा से मैं आज का पहला सवाल पूछना चाहूंगी। हाँ, ज़रूर पूछिए। जैसे हमने अभी एक बात छेड़ी थी कि संगीत तो जन्म से ही आपकी रग-रग में बसा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपने काफ़ी कम उम्र में ही कार्यक्रम करने भी शुरू कर दिए, संगीत की प्रस्तुति करनी शुरू कर दी थी। तो आज का सवाल ये है कि बचपन के उन दिनों की क्लास से जुड़ी या कार्यक्रम से जुड़ी ऐसी कोई कहानी, ऐसा कोई वाक्य है, जो आप हम सबको बताना चाहेंगे या जो आपके दिल के बहुत करीब हो? बड़ी सारी यादें हैं बचपन की हम लोगों की और हमारे गुरुजी जी पंडित बड़े रामदास जी वहाँ हमें भेजा जाता था सीखने के लिए। तो 5 साढ़े 4-5 साल का उम्र था और तो एक ही चीज़ को बहुत बार रटना पड़ता था, प्रैक्टिस करना पड़ता था। तो बचपन में मन तो लगता नहीं था, तो 2-4 दिन करने के बाद मैं धीरे से उनकी निगाह बचा के भाग गया और बगल में हमारा डीएवी स्कूल है, उसका बहुत बड़ा मैदान है। वहाँ जाके हम बच्चों के साथ खेलने लगे। तो 2-3 दिन तो उनको पता नहीं लगा, चौथे दिन पता लगा तो हमारा नाम लेके उन्होंने बोला कि रजनवा कहाँ गए? तो सब लोग बोले कि खेतौआ में गए लो। डीएवी को खेत बोला जाता था, खेतौआ। जो पकड़ के ले आओ। तो 2 बड़े शिष्य जो उनके थे वो आए और हमको दोनों हाथ से उठा के ले आए उनके सामने। तो वो हमेशा माला का जाप करते रहते थे। तो उसी माला से 2 माला हमको मारे और बोले मुर्गा बन जाओ। मुर्गा बन के बैठा था मैं थोड़ी देर तक, रो रहा था। फिर बोले फिर जाएगा, फिर भागेगा यहाँ से। हमने कहा नहीं दादा नहीं, दादा नहीं जाएंगे, अब नहीं करेंगे ऐसा करके। तो ये जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण याद है कि उनके माला का मार खाना और वही आशीर्वाद बन के अभी तक बरस रहा है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस और आपकी बात सुन के थोड़ा ऐसा लगा कि शायद हमारे लिए भी उम्मीद है जब आपने बोला कि बचपन में मन नहीं लगता था। तो ठीक बात है। ठीक है, अब
नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आई वांट टू शेयर विद एवरीवन दैट अभी एक बात कही कि 5 साल की उम्र में सीखना शुरू किया था। सो आई वांट टू शेयर विद एवरीवन दैट यू एक्चुअली हैड योर फर्स्ट परफॉर्मेंस as a Hazri in the Sankat Mochan Hanuman Temple in Banaras in 1967 when Pandit Rajan Mishra ji was 10 years of age and Pandit Sajan Mishra ji was just 5. And your first international concert was in 1978 in Sri Lanka, after which, of course, you have traveled far and wide, putting the Indian classical music on the world map. In fact, in 2017-18, your tour, Bhairav Se Bhairavi Tak, A Journey Through the Ragas, you performed over 56 concerts in cities across India, Southeast Asia, North America, South America, UK, Europe, Australia, and New Zealand. Traveling in India and across the world, you must have made many memories and you must have many memories that you cherish. But today, my question is something different. What I want to ask you is that when you were traveling, all these years you were traveling in India or abroad, and you were away from home. So, was there ever a time that you felt like you were home? That काश आज हम घर पे होते. ऐसा तो कभी नहीं लगा, क्योंकि जहाँ भी हम लोग जाते हैं वही घर बन जाता है। जिनके जिनके साथ भी रहे वो अपने घरेलू ही आदमी थे और घर का जैसा प्यार मिला और एक एक्साइटमेंट भी था कि इतनी जगहों पे प्रोग्राम करने का और इतनी सुंदर सुंदर जगह को देखने का और ऐसे अच्छे लोगों से मिलने का। खास करके यूरोप में बहुत ऐसी जगह पे हम लोग प्रोग्राम किए जहाँ लोग रो रो के हमारे कार्यक्रम का आनंद लिया। उन्होंने आंसू बहा के कहा कि अब बात करने की इच्छा नहीं है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट मिला हम लोगों को, ये बड़े भाग्य से मिलता है और वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड वी thoroughly enjoyed our whole tour. How nice. गुरु हमारी आशाओं को प्रेरित करते हैं, सीखने के प्रति प्रेम पैदा करते हैं। गुरु वही है जो जीना सिखा दे, आपसे आपकी पहचान करा दे, तराश दे हीरे की तरह तुमको, बताए वो तुमको जीत जाना ही सब कुछ नहीं है, हार कर भी जीने का हुनर सिखा दे। मैं एक बहुत सौभाग्यशाली शिष्य हूँ जो ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त कर रही हूँ। किसी भी परिस्थिति को आनंद में बदला जा सकता है, ये गूढ़ ज्ञान हमारे गुरुजी के पास ही है। जब वे दोनों छोटे बच्चों की भांति हंसते हैं और हंसते खिलखिलाते दिखते हैं, तो ऐसा लगता है मानो सहजता ने स्वयं शरीर धारण कर लिया हो। मैं अपने गुरुजी की एक बात शेयर करना चाहती हूँ। I would like to echo his words, which we have been hearing. Honestly, it's a statement of Osho that laughter is the only religion on this earth. Because when we laugh, when we laugh, we live in the present. This is a beautiful thought. This is a thought for everyone to ponder. बहरहाल, इस बात के साथ अब हम मेरी तो औकात नहीं कि मैं गुरुजी से कुछ सवाल पूछूं। सवाल मैं क्या उनसे पूछूंगी, मेरे तो हर सवाल का जवाब वही है। हम अब कुछ पुरानी तस्वीरें देखना चाह रहे हैं गुरुजी, और हम सब मिल करके उनको देखेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि उन तस्वीरों से जुड़ी हुई जो भी कहानी या किस्सा हो, वो आप हमको सुनाएं, हमारे साथ शेयर करें। साजन भाई सुनाएंगे किस्सा ये सब तस्वीरों की। ये हम लोग बहुत पहले, ये 70s की तस्वीरें हैं जी। मेरे साथ कांता प्रसाद जी हैं,
और एक ग्रुप जो आप देख रही हैं उसमें मेरे जीजा जी पंडित मिट्ठू लाल जी और पंडित सोहनलाल मिश्रा जी हैं, हमारे बड़े भाई साहब पंडित राजन मिश्रा जी टोपी लगा के खड़े हैं जी और कांता प्रसाद जी खड़े हैं। तो ये हम लोगों का टूर हुआ था, ये 72-73 ऐसा ही होगा। जी तो कहीं कहाँ का है ये ये मसूरी? पठानकोट। पठानकोट का है, तो वहाँ थोड़ा अरे ठंड वाह था, इसीलिए टोपी वोपी लगाए हुए हैं। और जी बड़ी सारी यादें हैं उस जमाने की, और बड़ा प्यारा माहौल हुआ करता था। और हम लोग बहुत ही लकी हैं कि ऐसे ऐसे जगहों पे जाना जहाँ कोई सोच नहीं सकता है, वहाँ पे भी जाके हम लोग कार्यक्रम किए और लोगों का जी इतना स्नेह मिला। हम लोग जी डाकुओं के बीच में भी जाके प्रोग्राम किए जी हैं, तो वहाँ पे भी खुशी मिली, वो भी खुश हुए। तो ऐसे अनेक बहुत सारे कहानियाँ हैं जो कि बड़ी लंबी हो सकती हैं, 2, 4, 6 घंटे लग सकते हैं। अगर हम उन कहानियों को अलग अंदाज में और उस माहौल में हम उसको क्रिएट करें और उसको विज़न करें, तो बहुत ही अच्छे पल गुज़रे हैं और आप लोगों का प्यार, स्नेह से अभी भी बहुत अच्छे पल गुज़र रहे हैं। और भी कोई तस्वीर दिखाइए तो शायद जी और कुछ जुड़ी हुई आर्तिका बातें। यस जी वाह! ये ये हमारा सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है। जब जी मैं एमए कर रहा था समाज शास्त्र से, सोशियोलॉजी से, तो वो हम्म हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है प्रोफेसर एसके श्रीवास्तव जी, जो हम्म बहुत तन्मयता से सुन रहे हैं और हम्म मुझे बुला के गवा रहे हैं। उनका ऐसा होता था, वो संगीत के बड़े प्रेमी थे। कई बार वो आके क्लास में बोलते थे कि भाई आज क्लास नहीं होगा, आज मिश्रा का गाना होगा। तो हमें बुला के बैठा देते थे चेयर लगा के और एकदम आँख बंद करके वो गाना सुनते थे, तो 40-50 मिनट का जो क्लास होता था, वो 50 मिनट में गाता रहता था। अब ये सुनाओ, अब वो सुनाओ, अब ये बंदिश सुनाओ, अब ऐसे करो। तो उसमें ये भी बड़ी एक अजीब यादें हैं हमारे जीवन की, कि जो हमारे खुद प्रोफ़ेसर जो हैं हमको इतना प्यार करते थे, इतना हमको लाड करते थे। तो ये उसी समय का फ़ोटो है। बहुत प्राचीन फ़ोटो कहाँ से मिला तुम लोगों को? जी हम लोग खोजबीन करते रहते हैं अरे वाह! अब ये इसके बारे देखो। में मैं ये कहूंगी हाँ, कि सबसे ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ मैं आपकी जैकेट से एंड वाह! आप यू आर सो ड्रेस्ड ऑफ द टाइम्स आज ये का जब भी यही क्रिकेट फैशन है क्रिकेट के कैप्टन थे, तब डीएवी डिग्री कॉलेज का, उस समय का ये कोट है। और ये गोद में अंजू हैं, मेरी माँ है और हमारी भाभी हैं। जी हुँ, वाह! वाह! ये मेरी शादी का है जी और ये रितेश भैया बैठे हुए हैं घोड़े पे आगे। अरे वाह क्या बात है ये जी सब फ़ोटो हमको लगता है रजनीश जी ने ट्रांसफ़र किया है। बस गुरुजी मेरी पहुंच बहुत दूर दूर तक है बस। जी और बहुत नजदीक और हाँ, और दूर इसमें दोनों हमारे तक है कुछ मित्र हैं, पीछे मोहन सिंह का भी सर दिख रहा है, बहुत ही प्यारा बच्चा था, आज हम लोगों के बीच में नहीं है। अच्छा अच्छा और बहुत ये ही, मोहन भैया हाँ, जी मोहन सिंह, बिल्कुल। जी 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 Artika, have you seen all the pictures? Hmm. तो ये तस्वीरें देखकर तो वी ऑल गॉट अ ट्रिप डाउन मेमोरी लेन और आशा करते हैं कि आपको भी मज़ा आया होगा ये सारी तस्वीरें देख। बहुत, बहुत मज़ा आ रहा है। अब हमने कहीं से सुना है कि संगीत के अलावा भी एक चीज़ है जो आपके मन के बहुत करीब है और ये है प्रकृति के नज़ारे देखना। और ऐसा भी सुनने में आया है कि आप लोग हर साल थोड़ा-सा समय निकाल कर जिम कॉर्बेट जाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो इससे जुड़ा कोई किस्सा हो या इससे जुड़ी कोई भी बात हो, वो आप हमें आज यहाँ पे विस्तार से बताएँ तो हमें बहुत मज़ा आएगा। प्रकृति से तो बहुत प्यार है हम लोग को दोनों को और
साल में 2-3 ट्रिप हम लोग प्रकृति में लगाते हैं। जिम कॉर्बेट तो बहुत बार गए हैं और उसके अलावा पहाड़ों पे कनासर है, बुधेर है, जरमोला है, चक्राता है, खिरसू है। ये सब ऐसे जगह हैं जहाँ बहुत कम लोगों को जानकारी है उसकी। बहुत छोटा-छोटा गाँव है लेकिन बड़ी सुंदर जगह है। तो वहाँ भी जाके हम लोग 5 दिन 4 दिन ऐसे रहे हैं और अभी भी मन करता है कि जाएँ। और इधर भी तो बहुत दिन से हम लोग कॉर्बेट नहीं जा सके हैं। लेकिन कॉर्बेट की इतनी मेमोरीज़ है हम लोगों के पास। तो कॉर्बेट में तो हम लोग जाते हैं तो पूरा जो जीवन है रिजुविनेट हो जाता है। वो फिर से सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है प्रकृति में जाके और वहाँ रह के। एक जगह है वो कहाँ हम लोग गए थे जहाँ हल्दू पड़ाव। इतनी ठंड थी वहाँ पे और साजन भाई ने वहाँ खाना-वाना बनाया था काफ़ी। तो वहाँ पे एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है। उसी चबूतरे पे बैठ के हम लोग सवेरे-सवेरे ललित गाना शुरू किए। और हमारे मित्र लोग भी गए थे। उसके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी हैं। तो जंगल के जितने भी वहाँ के कर्मचारी लोग थे, करीब 35-40 लोग आके खड़े होके घेरा बना के सुनने लगे और हम लोग गाते-गाते धीरे से आँख बंद करके गाने लगे। तो 1 घंटा, सवा घंटा ऐसे ही गाते रहे। और इतना आनंद आया प्रकृति में बैठ के गाने का और जो जंगल के लोग थे, वो सुन के इतने आनंदित हुए और उसके बाद फिर हम लोग को पकौड़े भी मिल रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं वो मिल रहा है। अरे सर हम आपको ये ले आके देते हैं। तो हम लोग की सेवा सत्कार भी बहुत बढ़ गई और बड़ा आनंद रहा प्रकृति में बैठ के गाने का। ऐसे ही ये कौन गुफा है वो जो वशिष्ठ गुफा। वशिष्ठ गुफा। वशिष्ठ गुफा एक है ऋषिकेश के आगे। वहाँ हम लोग गए थे वर्कशॉप करने अपने सब बहुत सारे शिष्यों को लेके। तो वशिष्ठ गुफा में जब एंट्री की है तो काफ़ी लंबी गुफा है और उसमें जाके शंकर का पद एकदम से दिमाग में आया, डमरू हर कर बाजे। वो जो गाना हुआ, उसमें जितने लोग थे इंक्लूडिंग अस, हम लोग भी रोने लगे। तो ये माहौल और ये क्षण जो है, कभी-कभी मिलता है ज़िंदगी में। जी। आपकी बातें सुन के अभी ऐसा लग रहा है कि काश हम भी आपके साथ होते और काश हमें भी सौभाग्य मिला होता वहाँ पे जी। सुनने का। सीमा जी आप कुछ कह रहे थे? जी। It is a divine plan to have a guru. His anchoring has exposed me to the magical musical adventure, along with which I am able to tune into myself and embrace the inner knowing. A guru always changes the alchemy of the body, mind, and soul. He has nurtured us, sown seeds of more love, consciousness, awareness, happiness, peace, and gratitude. He reconstructs our life and brings in more refinement. They are omnipresent. I would like to say here, honestly, without a guru, it is almost somewhat like traveling without a map. I'm grateful to Almighty for this inspirational journey of 22 years. Thank you so much, Guruji, for making me your disciple. और भी लोग इसमें ज्वाइन कर रहे किए हैं। जी, काफ़ी लोग हमारे साथ हैं गुरुजी। जी। हाँ? हाँ, नहीं और लोग भी नहीं, क्वेश्चन करेंगे और लोग कहने भी का कोई मतलब। जी, अभी कर रहे चाहते हैं, हैं अभी बात कर करना तो जी। उनको भी मौका दिया जाए बात करने का। जी, जी। हम ही मैं लोग बात अभी कर रहे एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ज़रूर।
कि in my association with Gurujis, I have witnessed almost 100 concerts in the past years, which is a blissful blessing. मंच पे जब गुरुजी गाते हैं तो यकीनन सबका मन जीत ही लेते हैं। मैं सबके साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ अब, जो बिहाइंड द सीन्स होता है, जिन लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आई एम वन ऑफ दोज लकी वंस, कि जब ग्रीन रूम में गुरुजी रिहर्सल करते हैं तो उसका रंग कुछ और ही होता है। मन आनंदित हो जाता है। सबसे बड़ा अजूबा तो वो है जब मंच तक पहुंचते-पहुंचते गुरुजी जो भी प्रैक्टिस ग्रीन रूम में कर रहे होते हैं, वो राग ही बदल देते हैं। ये चमत्कार तो कोई उन जैसा कलाकार ही कर सकता है। तो गुरुजी इसका क्या राज है? और इससे पहले स्वरांश, इज इट पॉसिबल टू हैव अ शॉर्ट क्लिप ऑफ अ ग्रीन रूम की मस्ती का एक छोटा-सा क्लिप हम देख सकते हैं? ठीक है। माइक थोड़ा साउंड का आई थिंक आर्टिकल। ये सब सीमा जी का करामात है। ग्रीन रूम में आके सब रिकॉर्डिंग करती रहती हैं। गुड। हमारी वो क्या बोलते हैं, खजांची। खजांची हैं सीमा जी। जी, आप कुछ कभी ढूँढे तो मुझसे ही पूछ लीजिएगा, मैं अब आपको पूछता ही हूँ मैं बहुत बार, कई बार तुमसे पूछता हूँ। जी। मैं ओवर माफ़ी, टू यू। हो सकता है मैंने आज थोड़ा-सा ज़्यादा बोल दिया हो और आप बात भी सही कर रहे हैं, यहाँ पे आज बहुत सारे लोग हैं, जो आपसे बात करने के लिए उतावले हैं। पर अभी एक बात हुई थी जिसके बारे में तो मुझे पूछना ही पड़ेगा। वो ये थी कि आई नो यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर फूड एंड आपने अभी खुद बोला कि कभी-कभी छोटे गुरुजी खाना बनाते भी हैं। तो इस बारे में हम जानना चाहेंगे और दूसरी बात मैंने सुनी है कि आप जहाँ-जहाँ जाते हैं कॉन्सर्ट करने, आपके पान के पत्ते भी आपके साथ-साथ जाते हैं। तो इस बारे में आप हमें थोड़ा-बहुत बताएँगे, तो हमें बहुत मज़ा आएगा सुन के। छोटे गुरु जी तो ही इज ए वेरी वेरी गुड कुक। कुक, यस। और इतने अच्छे-अच्छे खाने इन्होंने खिलाए हैं हम लोगों को। कॉर्बेट में एक एक बार कढ़ी बनाया इन्होंने। तो दही मंगवाया था उससे। जो वहाँ ड्राइवर था, वो दही नहीं ला पाया, तो चाट मसाला डाल के इन्होंने कढ़ी ऐसी स्वादिष्ट बना दी कि लोगों ने बर्तन साफ कर कर के कढ़ी खा लिया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। हम लोग के पान के पत्ते खत्म हो गए जर्मनी में, तो हमने लंदन में, हमारे मित्र हैं विरम जसानी जी, उनको फ़ोन किया कि विरम भाई, पान का पत्ता खत्म हो गया है और अभी करीब 20-25 दिन का टूर और है। तो उन्होंने कहा कि मैं भेजता हूँ, कुछ इंतज़ाम करता हूँ।
तो जिनके घर हम लोग थे, वो कैथरीन जो हमारी टूर ऑर्गेनाइज़र थीं, वो पालक और पनीर बनाने का सामान ले आईं, पालक ले आईं और पनीर ले आईं। तो छोटे गुरुजी ने कहा कि ये ज़रा दिखाओ, पालक के बड़े-बड़े पत्ते थे। तो उस पालक के पत्ते को धो के, उसी पे कत्था चूना लगा के, इन्होंने अपना पान एक खाया और बोले कि वाह! ये तो बहुत ही अच्छा जम रहा है। पालक का पत्ता मुलायम होता है। तो 2 दिन हम लोग पालक के पत्ते पे पान खाते रहे। और फिर तीसरे दिन हमारा पान लंदन से आया। तो इस तरह के बड़ी सारी घटनाएँ और जीवन की बड़ी-बड़ी यादें हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं। How nice to hear this, Guruji. छोटे गुरुजी You से are पूछो क्या-क्या बनाते हैं? नहीं, नहीं मैं तो ये तो सभी अच्छे जी, खाने बनाने वालों को देखता रहता हूँ और उनके बनाए हुए खाने को स्वाद टेस्ट करके मैं सोचता हूँ, विज़न करता हूँ अपने आप में कि इसमें क्या-क्या डले होंगे। फिर मैं अपना कोशिश करता हूँ और ईश्वर की कृपा से आधा विश्व तो हम लोग घूमे हैं और आधे विश्व में हर जगह मैंने खाना बनाया है और सभी को अच्छा लगा है, ये मेरी सौभाग्य की बात है। और कोशिश में रहता हूँ कि जो भी मतलब कि मन में आ जाए उसको कर लेना चाहिए। तो मैं अभी भी कभी-कभी मन होता है रात में कुछ बना के खाने का, तो 11 बजे रात को भी मन हो जाएगा तो मैं किचन में मिलूँगा। तो ये एक शौक है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, खास करके रितेश, रजनीश, स्वरांश ये लोग भी हमारे खाने को एप्रिशिएट करते हैं। तो ये लोग भी बेचारे 10 बजे खाने वाले भी 11 बजे, 12 बजे वेट करते हैं कि चचुआ मतलब मुझे चचुआ बोलते हैं वो लोग, कि वो जी, बना रहे हैं तो कुछ अलग बनेगा। तो अच्छा लगता है कि सब लोग को अच्छा लगे खाना और ख़ास करके सीमा तो बहुत ही बड़ी मतलब उस्तादों की उस्ताद है खाने के अरे मामले वाह! में। इनका तो अंतहीन सीमा इनका नाम ही हम लोगों ने जी, रखा है कि जी। इतना वेरिएशन, इतना वैरायटी, इतना कुछ शौक है। तो सीमा की भी जो चीज़ें हैं उसको भी एप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उनको बनाने की हिम्मत मैंने कभी नहीं की। नहीं, नहीं। उनका कुज़ीन जो है ज़रा टफ़ है मेरे लिए। नहीं, मैं तो मुझे तो आदत पड़ गई, मेरे घर में हर हफ्ते निमोना बनता है गुरुजी। वो तो बड़े गुरु और जी वो की देन है। जी, कुचवा पराठा हम हुँ, वैसा नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो फ्लेवर्स अंदर बसे हुए हैं। वाह! जी, बातचीत का सिलसिला आर्तिका यू आर आल्सो सो राइट, दिस इज़ सो एंगेजिंग and there is never enough talking to our Gurujis and listening to their stories. There's such a field of energy that they give us, and their words always resonate. पर हमें आगे तो बढ़ना ही है गुरुजी और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज की इस सभा में आपसे बातचीत करने के लिए दुनिया भर से लोग हमारे साथ हमारे बीच में हैं और सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ ओंटेरियो मिसिसुगा से अनीता और हर्ष मोहन को कि वो आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे अनीता एंड हर्ष कैन यू प्लीज कम ऑन द स्क्रीन Pranam Guruji, it was very nice to meet with you, and even if it's in Zoom. और आपकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगा. नमस्कार। Pranam Guruji, I had the good fortune of listening to you live in Delhi with Seema and Madan once I attended your program. राइट। And Seema has been a class fellow from school and college. वाओ! So we have a long relationship from before. यस। एंड मेरा सवाल आपसे गुरुजी ये था कि यहाँ बहुत से लोग हैं जो म्यूजिक सीखने के लिए इच्छुक हैं बट दे डोंट हैव अ गुड गुरु सो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर दोज पीपल टू लर्न म्यूजिक सिटिंग इन ओंटारियो There are many artists all over the world also. वो कनाडा में भी बहुत कुछ लोग हैं जो सिखाते हैं, अच्छा सिखाते हैं। लेकिन अगर उनको सीखने की बहुत इच्छा है तो इंडिया आना पड़ेगा उनको और इंडिया आके सीखना पड़ेगा या किसी अच्छे गुरु से ऑनलाइन क्लासेस तो लेने होंगे।
तो आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं गुरुजी? हमारे अपने जो बड़े बेटे हैं रितेश जी रजनीश और जी। रजनीश जी, दोनों ही जी। स्काइप और ऐसे जूम पे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो हाँ उनसे जी। भी वो लोग सीख सकते हैं बिल्कुल। ओके। और पूरे विश्व से लोग सीखते ही हैं उनसे। बहुत सारे अमेरिका से उनके स्टूडेंट हैं, कैलिफोर्निया से हैं, बॉस्टन से हैं, कई जगह से हैं, वो लोग सीखते हैं। तो वो लोग भी संपर्क करके और इन लोगों से सीख सकते हैं। ओके। Thank you, Guruji. Thank you. थैंक वेरी नाइस मीटिंग यू, थैंक यू सो मच। Same here. I will, yeah, and Anita, I will catch up on this and I will let you know the details later. अब मैं जो नाम लेने जा रही हूँ, हमारी बहुत अजीज, the one and only श्री रूप कुमार जी राठौर, जिनकी मौसीकी ने दुनिया भर में सबका दिल जीत रखा है। और ये बात बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि उनकी बेटी रीवा, जो बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है, एंड वो भी हमारे गुरुजी की ही शागिर्द हैं। तो मैं रूप जी आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि कृपया स्क्रीन पर आए। भाई लागी जय हो, जय हो रूप जय हो। भाई। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके। अरे हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपका भी कार्यक्रम हम लोगों ने अटेंड किया था, जी सीमा जी ने किया था रसीपा में, बहुत ही अच्छा लगा। और अभी जो आपने फोटोग्राफ्स भेजे हैं, अरे आपको इतना मिस किया है सुपर। जंगल में मैंने। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी वाइल्ड लाइफ का जो मेरा शौक है, वो लगाने वाले पंडित जी हैं बिल्कुल। और ऐसा खाना राजन भैया के हाथ का जंगल में तो बिल्कुल मंगल हो जाता है। और उसके ऊपर फिर वो उनके हाथ से प्रसाद के रूप में जो पान मिलता है और जोक्स, मतलब जो है जिंदगी इससे अच्छी कोई इमेजिन नहीं कर सकता जब हम इनके साथ होते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक अरे यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, और बड़ा दिल का रिश्ता है ना आपके साथ। बिल्कुल, 40 साल से ऊपर हो गए। जरूर, बिल्कुल हो गए। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। तो आपके साथ सुर और दिल दोनों मिला हुआ है, इसलिए हम लोग को परमानंद का अनुभूति होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी एक सवाल, ये जितने भी यंग सिंगर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी तरफ से कि एक ज़माना तो ये था कि गुरुमुख से विद्या सीखते थे, गुरु के सामने ही रियाज़ होता था। लेकिन अब जो है, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो जब अकेले में स्टूडेंट रियाज़ करता है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंटों ने? सबसे पहला ध्यान तो सुर का रखना चाहिए। और सुर एक ऐसी चीज है जो अपना जैसे जैसे अहंकार गलता है, हाँ, हाँ, वैसे वैसे सुर आता है। क्या बात! तो जब अपने को अनुपस्थिति, अपने आप का अनुपस्थिति दर्ज करने लगे गाने में, और सुर के पीछे निगाह जाए, सुर के पीछे दिल जाए, तो वो सुर के करीब करीब होने लगते हैं। आमिर खान साहब कहते थे कि मैं अपने सुर को ऐसा देखना चाहता हूं जैसे आर पार दिखाई दे। ओहो! तो वो जो बात है, अब जैसे कि गंधार लगा रहे हैं, तो गंधार तो सुर में सभी लगाते हैं, हुँ, लेकिन उसके लगाने के पीछे जो एक भावना होती है कि गंधार कैसा होना चाहिए, या मध्यम मालकोस का कैसा होना चाहिए, या धैवत भैरव का कैसा होना चाहिए। तो अगर इसकी फीलिंग हो अंदर में, तो वो हाँ, धीरे धीरे उस धैवत, उस मध्यम, उस गंधार, उस ऋषभ तक पहुंच सकता है बहुत आदमी। अच्छा। वाह, वाह, वाह! उसमें बस धीरज धरे सो उतरे पार, हाँ, धैर्य बहुत जरूरी है। वो आज आज की जनरेशन में वो कम चीज़ है, मिसिंग है, बहुत मिसिंग। कम है। वो धीरज जो है, ओवरनाइट सब कुछ पाना चाह रहे हैं। यही, इसी हाँ, से सब गड़बड़ हो गया है। इसी से गड़बड़ हो गया है। क्योंकि हमारे संगीत में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं रूप भाई, जी, कि हमारे बनारस के बहुत बड़े विद्वान थे पंडित मिठाई लाल जी, जी। जो बहुत ही उत्तम गायक थे हुँ, और बड़े नामी थे।
वो एक उस्ताद जी से उनको बीन सीखने का मन हुआ, वीणा, हाँ, पट्टा बीन। जी, जी। तो जाके उनसे बोला उन्होंने कि मुझे ये बीन सिखा दीजिए आप। तो वो बोले कि यार तुम तो इतने अच्छे गायक हो, ये कहाँ वीणा बजाने के लिए तुम आ गए? हाँ, बोले नहीं मुझे सीखना है। तो बोले कि सीखना है तो एक शर्त है कि शिष्य बन के सीखना होगा हुँ, और इतना रुपया महीना देना होगा। अच्छा। और दूसरा शर्त ये है कि जब मैं कहूँगा कि वीणा हाथ में लो, तब वीणा छुओगे, ओहो! वरना नहीं छुओगे। ओहो! क्या बात है। हुँ। तो 2 साल तक वो गुरु के पास जाते रहे, उनकी सेवा करते रहे, उनका तंबाकू भरते रहे, क्या हुक्का बात पीते थे, क्या ये बात! सब करते रहे और 2 साल तक गुरु अपना स्नान वगैरह करके जब बजाते थे, तो ये सामने बैठ के सुनते थे। हुँ, 2 साल तक इनको छूने नहीं दिया कमाल, साज को। कमाल। 2 साल में 1 दिन ऐसा आया, जब गुरुजी ने कोई चीज़ बजाई, तो इनका दोनों हाथ ऐसे ऊपर आ गया, बोले, "हा, हा, 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 हाय, हाय, हाय! क्या सुर लगा गुरुजी।" वाह! बोले, "उठा लो वीणा।" क्या बात है! क्या बात है। और जब वीणा इन्होंने उठाया अपने हाथ में दूसरा, तो पैरेलल गुरु के बजाने लगे। ओहो! मतलब जो 20 साल में नहीं सीख सकता आदमी, वो 2 साल के साल में ऑब्जर्वेशन में सीख सकता है, बशर्ते कि उसके पास धीरज हो। धीरज, बहुत सही, बहुत अच्छी बात, बहुत ये अच्छी धीरज की कहानी है, वाह, वाह, कि धैर्य कैसा है और गुरु भक्ति कैसा है वाह! और कितनी अंदर सहनशीलता है कि गुरु ने कहा है जब कहेंगे तभी हम उठाएँगे। हाँ, हाँ। आज हम अपने शिष्यों को कहते हैं कि तानपुरा सुनो, कोई सुनता ही नहीं। बहुत सही। थैंक यू, थैंक अपने गाने में ही लगे रहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तानपुरा नहीं सुनते हैं। और जब जिस दिन वो तानपुरा सुनना शुरू करेंगे, उसी दिन गाना आ जाएगा। वाह, वाह, वाह! बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सीमा जी। बहुत-बहुत अरे थैंक यू थैंक सो यू मच रूप रूप भाई, जी। बहुत अच्छा थैंक लगा। यू सो मच रूप जी। और थैंक यू गुरु जी। हमारी शिष्या कहाँ है? वो है फ़ोन पे है, दूसरे फ़ोन पे। मतलब ओह! वो जुड़ी है, हाँ, हाँ, मैं लेकिन मैं दूसरे रूम में हूँ। अच्छा, अच्छा, हाँ। ठीक है। अ, अब मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हमारे मित्र श्री नवनीत सोनी जी, जो आजकल भोपाल में रहते हैं गुरु जी। कला के क्षेत्र में इनका विशिष्ट योगदान हमेशा रहा है। कल्चरल मिनिस्ट्री से जुड़े रहने के कारण आपने कलाकारों को और कला प्रेमियों को हमेशा बहुत प्रोत्साहन दिया है। मैं नवनीत भाई से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया स्क्रीन पर आएं और गुरुजी से कुछ बातचीत करें। नमस्कार गुरुजी। अरे नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। सोनी साहब कैसे हैं? बस ईश्वर की कृपा है, दया है वाह, वाह, और भोपाल में आनंद हो रहा है वाह! और आज इस कार्यक्रम में जुड़ने का सौभाग्य मिला। मुझे इतना आनंद हो रहा है आप लोगों से मिलके और मुझे याद आ रहा है कि जब मैं सहारनपुर पोस्टेड था तो पहली बार सीमा जी के घर पे आपसे भेंट बिल्कुल, हुई थी बिल्कुल। और सबसे अधिक जिस बात से मैं प्रभावित हुआ वो ये कि इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद जो ह्यूमिलिटी और सहजता आप दोनों के व्यक्तित्व में है, हम लोग साथ-साथ बैठे थे, खाना-पीना चल रहा था और उसके साथ-साथ छोटे गुरुजी के लतीफ़े चल रहे थे और एक से एक लतीफ़ा और हँस-हँस के हम लोग लोट-पोट हुए जा रहे थे। तो बाद में जाकर के जो है मैं यही विचार कर रहा था कि जितना आर्टिस्ट ऊपर उठता जाता है, ईश्वर को जिस तरह फलों से लदा हुआ पेड़ झुकता है, उसी प्रकार का आपका व्यक्तित्व है और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गई। थैंक 10 यू। साल कल्चर मिनिस्ट्री में जो है जो लगे, बहुत से लोगों के साथ उठने-बैठने का सौभाग्य मिला और एक चीज़ जो मुझे बहुत याद आती है कि जब गांधी जयंती पे अ, वहाँ 30 जनवरी मार्ग पे प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में आपने कार्यक्रम किया जी, और उसमें
नॉर्मली राम धुन गाई जाती है या उस प्रकार के भजन गाए जाते हैं। मेरे विशेष आग्रह पे आपने मेरा पसंदीदा भजन गाया, चलो मन वृंदावन की ओर, तो वो तो आज तक मैं भूल नहीं सकता कभी। वाह! जी। तो आजकल तो भोपाल में मेरा आप कहाँ हैं? भोपाल में पोस्टिंग हो गई है। जब कल्चर मिनिस्ट्री से वापस आया तो इनकम टैक्स विभाग में मुझे भोपाल में पोस्ट कर दिया गया है अच्छा, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चार्ज है। जी। तो बड़े वैसे तो बड़ा म्यूजिकल मध्य प्रदेश है। है। तो तो जब भी आएँगे हम लोग भोपाल तो आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। मैं आपको सतपुड़ा नेशनल पार्क है, वहाँ हाँ, पे एक जगह है मढ़ैया, जी। तो वहाँ लेके चलूँगा। तो एक बार कॉर्बेट की याद दोबारा आ जाएगी कि यहाँ मध्य प्रदेश में भी एक कॉर्बेट के मुकाबले की जगह है। बिल्कुल। वाह! इतना शांत वातावरण है कि वहाँ पर आपका जो सुर लगेगा, वो अद्भुत लगेगा, ये मेरा विश्वास है। ज़रूर, ज़रूर। ज़रूर जल्दी तो बनाएँगे। मेरा जरूर। जी, प्रश्न मेरा ये है गुरुजी जी। कि इतनी लंबी संगीतमय आपकी जर्नी रही, इस जर्नी में कुछ आपके सीनियर और कुछ आपके समकक्ष जो महान गायक रहे, उनमें कौन-कौन ऐसे हैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया अपनी कला से? और वो उनमें क्या ऐसा विशेष था जिसने आपको प्रभावित किया? हम लोग तो ऐसे गुरु के शिष्य हैं, हमारे जो पिताजी हैं, उन्होंने ये हमें समझाया कि हर जगह सीखने का प्रयास करना। तो जितने भी हमारे बुजुर्ग कलाकार हुए, जैसे जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी, उस्ताद अमीर खां साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, पंडित जसराज जी, श्रीमती किशोरी अमोनकर जी, पंडित कुमार गंधर्व जी, तो जब भी हम इनको सुनने गए, तो वहाँ से कुछ सीख के वापस आए। जी। और हमारे पिताजी ने ये भी कहा था कि कोई भी सारंगी बजा के भीख माँगने वाला भी व्यक्ति तुम्हारे गली से गुजरे और अच्छा भजन गा रहा है तो उसको भी 5 रुपया 10 रुपया दे के उससे भी कुछ सीख लेना। तो ये सीखने की जो प्रक्रिया उन्होंने डाल दी बचपन में, तो वो अभी तक चल रहा है। और हम लोग छोटे आर्टिस्ट को भी जो हमसे जूनियर हैं, उनको भी जब सुनने जाते हैं, तो उनसे भी कुछ सीख के आते हैं। हमारे पिताजी ने क्या समझाया कि जब सुनने जाओ तो छात्र बन के जाओ और जब करने जाओ तो सबको छात्र समझो, क्या बात है। चाहे उसमें वाह! मैं भी बैठा रहूं। पिताजी कहते थे कि अगर महफिल में मैं भी बैठा हूं तो मुझे भी तुम अपना स्टूडेंट ही समझना, तभी गा पाओगे। लेकिन जब सुनने किसी को गए तो छात्र बन के सुने और जब करने गए तो गुरु बन जाओ। ये जो क्या तालीम बात है! है, ये तालीम हम लोग को बहुत बड़ा काम आया इस तालीम का। नहीं तो आप समझिए कि उस उम्र में मतलब हम लोग बहुत यंग एज में, सामने गंगूबाई जी बैठी हैं, जी। सामने हीराबाई बड़ौतकर जी बैठी हैं, सामने पंडित भीमसेन जोशी जी बैठे हैं, वसंतराव देशपांडे जी बैठे हैं। ऐसे लोगों के सामने बैठ के 1.5 घंटा मालकौस गाना, 74 की बात बता रहा हूँ मैं, कितने साल हो गए क्या बात! और क्या उम्र रही होगी हम लोग की। तो जी। वो जो तालीम थी कि जब बैठ गए स्टेज पे तो सबको छात्र समझो, सब तुम्हारे स्टूडेंट हैं, तुम गुरु हो और जब सुनने गए तो तुम चेले हो, बाकी गुरु हैं। क्या बात है! तो बहुत एक ही बढ़िया एक बात चीज़ है। और बताइए गुरुजी कि जी। आप दोनों ने आपस में जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है, तो कभी-कभी कोई एक विशेष चीज़ छोटे गुरुजी ने कह दी जो आपको बहुत अच्छी लगी या कोई एक चीज़ आपने ऐसी गा दी जिस पे हाँ, जो है छोटे गुरुजी का वाह-वाह निकल गया, ऐसा बिल्कुल। कभी हुआ? बहुत बार होता रहता है और उसी का हम लोग आनंद लेते हैं। इसीलिए हमारा जो जुगलबंदी है ना,
ये जुगलबंदी नहीं है, ये जी। सहगान है। हम एक दूसरे के जी। गाने को एप्रिसिएट करते हैं, जिसमें प्रेम होता है। तो वो जो जहाँ प्रेम होता है, वहाँ कंपटीशन नहीं होता, वहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं होती। तो उसी वजह से हम लोगों का गाना जो है, विद्वानों को भी पसंद है और जो नॉन म्यूजिकल लोग हैं, उनको भी पसंद है। क्योंकि हम लड़ाई झगड़ा वाला गाना बजाना नहीं करते, हम प्यार मोहब्बत वाला गाना बजाना करते हैं और एक दूसरे से प्यार बांटते हैं, प्यार पाते हैं, बांटते हैं, पाते हैं। ये चलता रहता है स्टेज पे। क्या बात! क्या थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बड़ा लगा। आनंद आया। थैंक यू बहुत गुरुजी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू नवनीत भैया, गुरुजी, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ बुलाना चाहती हूँ कोलकाता से हमारी एक मित्र हैं, मिसेस अन्नूपुरी हमारे बीच में है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन एंड पुट अक्रॉस योर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ द ग्रेट मास्टर्स। अनु। नमस्ते गुरुजी, आप नमस्कार, दोनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत नमस्कार। बहुत प्रणाम। गुरुजी, I remember I had the honor to meet you for a very short while in Calcutta. You know, Yes. बहुत short था, you know, and I still remember the time I met you. It was a wonderful meeting. Kash, you know, I really wish that I could have sat with you and, you know, heard a lot more from you. गुरुजी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है, you know, you might actually laugh also at what I'm going to say, you know, No, कि no. क्या 50 क्या 50 साल के बाद, you know, if one wants to start, not I wouldn't say start learning because I had music in college. मैं बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा संगीत में बहुत ज़्यादा शौक रहा है मुझे, जी। पर आई डोंट नो जैसे आई थिंक शादी के बाद क्या हुआ, you know, I it just took a back seat. तो अब मुझे लगता है कि मेरा बहुत मन करता है कि आई वांट टू गो बैक टू म्यूजिक, यू नो, इट गिव्स मी लॉट ऑफ पीस। पर जब मैं शुरू करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी वो आवाज ही नहीं रही है, क्योंकि आवाज की क्वालिटी, यू नो, मुझे लगता है कि मेरे वोकल कॉर्ड्स मेरे साथ ही नहीं है, दे आर जस्ट गोइंग हियर एंड देयर, यू नो, इट्स नॉट द सेम। एंड मुझे उस चीज का इतना बुरा लगता है, क्योंकि संगीत इज इक्वल टू, आई वुड से, रियाज। काश मैंने रियाज किया होता, यू नो, सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो शायद मेरी आवाज इतनी, मतलब, यू नो, होर्स या वट एवर आप जो मतलब इस लैंग्वेज में बोलते हो, क्या होता। बट आई रियली वॉन्ट टू गो बैक टू म्यूजिक। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि अब इस उम्र में, इस एज में आके, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक वन शुड लर्न, बिकॉज शास्त्रीय संगीत के लिए जो आपको वो रियाज की जरूरत होती है, यू नो, इट्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, यू नो। आई वुड लव टू डू इट, बट विद माय एज वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक, यू नो, बिकॉज आई नो मेरे जैसे और बहुत लोग होंगे, यू नो, who would, you know, want to go back to music, responsibilities, you know, get over. So if you can just give us, you know, some insight, I would be very grateful to you. Thank you so much, Guruji. म्यूजिक सीखने के लिए कोई उम्र की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि म्यूजिक जो है प्रेयर है। ठीक। आप जो ऐसे भी प्रेयर करती हैं, उसको ही संगीत में प्रेयर शुरू कर दीजिए और वही आपको दिशा देगा कि कैसे हमको गाना है। और इसके लिए गुरु की आवश्यकता तो जरूर होती है, गुरु आपको जरूर रास्ता दिखाएंगे, लेकिन ये समझ के कि हमको ये करेंगे तो ऐसा होगा, वैसे करने से वैसा होगा, ये विचार छोड़ दीजिए। जैसे ओशो कहते हैं कि मनुष्य का शरीर दे के भगवान ने तुमको इतना बड़ा दान दे दिया, अब फिर निरर्थक चीजों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अब क्या चाहिए? जब शरीर मनुष्य का दे दिया, बुद्धि दे दिया, सब कुछ दे दिया,
तो इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है? तो जब आपको गला दे दिया है, वो भावना दे दी है, वो प्रार्थना दे दी है, वो विनम्रता दे दिया है, तो अब इससे ज्यादा क्या करेंगे? क्या करेंगे लेके? तो आप जो है, जो रेगुलर भजन आप कभी गाती होंगी घर में, बस वो भगवान के सामने बैठ के गाना शुरू करिए। वो अपने आप रास्ता दिखाएंगे। और अगर ठीक थोड़ा-सा गाना है तो कोई गुरु, कलकत्ता में बहुत सारे लोग हैं और ऐसे ऑनलाइन भी आप बहुत सारे गुरुओं को प्राप्त कर सकती हैं। तो उनसे भी थोड़ा गाइडेंस लीजिए। और गाने की उम्र में कोई किसी भी उम्र में गाना सीखा जा सकता है। ये तो प्रार्थना है। प्रार्थना सीखने के लिए कोई उम्र थोड़ी होती है। क्या बात है। बचपन से लेके और बुढ़ापे तक प्रार्थना बिल्कुल। ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। हतोत्साहित आपने मत होइए कि बिल्कुल हमारा गला नहीं चल रहा है या नहीं हो रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस भी गले में जैसी भी आवाज निकल रही है, आपके भाव अगर निकलेंगे प्रार्थना स्वरूप, तो वही आवाज अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। So inspiring. बहुत-बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत शुक्रिया। इतनी सारी मेरे पास रिक्वेस्ट्स आ रही हैं, बहुत लोग आपसे रूबरू होना चाहते हैं, लेकिन समय की पाबंदी तो है ही। लेकिन मेरे सामने बहुत पहले से जो रिक्वेस्ट है, वो है रोनन निबलेट फ्रॉम लंदन। वो गुरुजी आपसे कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं। तो ओवर टू यू रोनन। Thank you. आई एम श्योर या हेलो। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। बहुत खुशी हुई मैंने आप दोनों को आज देखा और कुछ साल पहले आप लंदन आए थे और रॉयल अल्बर्ट हॉल में मैं आपको सुनने गया जी। और मुझे बहुत खुशी हुई। पूरी आफ्टरनून वहाँ बसाई मैंने और आपकी जो राग थे वो बहुत ही अच्छे थे। कोविड की वजह से तो आप इधर-उधर नहीं जा सकते हैं, मगर आजकल आपका जो कॉन्सर्ट है वो आप कैसे अपनी ऑडियंस के साथ कैसे मिलते हैं? ये ज़ूम में, ऑनलाइन और एक और बात मैंने आपसे पूछना था कि आपने कहा कि जहाँ जाते हैं वो वहाँ घर हो जाता है आपका। मगर मुझे बताइए कि ऑडियंस इंडिया में और बाहर लंदन में और अमेरिका में, उनमें क्या फ़र्क है? देखिए, इंडिया में क्या है कि एक्सपोज़र बहुत है, हुँ। तो लोग म्यूज़िक की बारीकियों को भी समझते हैं और उसपे वाह-वाह या आहा! या उसको एप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जहाँ तक भारतीय श्रोताओं का बात है, चाहे वो लंदन में हों, चाहे अमेरिका में हों, चाहे कहीं भी हों, उनकी वही मानसिकता होती है और वो उसी मानसिकता से संगीत को सुनते हैं। हुँ। लेकिन असली परीक्षा हमारी उस समय होती है, जहाँ भारतीय संगीत को लोगों ने सुना ही नहीं है। हाँ। वहाँ जब हम गाते हैं और वहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट मिलता है, दैट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल कॉम्प्लीमेंट वी रिसीव। Yeah. But sometimes you find that you don't really have to understand the words because the music speaks itself. Right. Yeah. Yes. Yeah. Music is a universal language. That's why Yeah. it is said. Yeah. तो एक जगह मास्ट्रिच है हॉलैंड में, वहाँ बहुत साल पहले हम लोगों का गाना हुआ, तो हुँ। ऑडियंस में से लोग आके बोले, कोई क्लैप नहीं किया उसमें, उस प्रोग्राम में। हाँ। नोबडी क्लैप्ड। तो हम लोग जब ग्रीन रूम में गए, सेकंड हाफ में फिर गाना था, तो हुँ। वी वर डिसअपॉइंटेड, क्योंकि यूरोप में और अमेरिका में हर जगह क्लैपिंग की बड़ी प्रथा है, ट्रेडिशन हुँ। है। जब आर्टिस्ट परफॉर्म करके जाता है तो बहुत देर तक क्लैपिंग होती है हाँ। और वहाँ हुई नहीं। तो वी वर डिस्कसिंग आपस में कि आज इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ लेकिन किसी ने क्लैप नहीं किया, किसी ने ताली नहीं बजाई। तो ऑडियंस में से कुछ लोग आके बोले
कि आप अपने प्रोग्राम में पहले अनाउंस कर दिया करिए कि नोबडी शुड क्लैप, क्योंकि जो हार्मनी आप सुर से बनाते हैं, लेट अस गो विद दैट हार्मनी, Yeah. द साउंड ऑफ क्लैपिंग ब्रेक्स इट। वाह, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट हमको हॉलैंड में मिला, ये कॉम्प्लीमेंट मैं इंडिया में चाहता हूँ। आप सही कह रहे हैं। जी, It और मैंने interferes with music. लंदन में इसका प्रयोग भी किया था एक बार। पर्सल रूम में एक प्रोग्राम था, हाँ, तो हमने सबको अनाउंस कर दिया था, रिक्वेस्ट किया था कि आज के हमारे कार्यक्रम में नोबडी शुड क्लैप। और प्रोग्राम इतना अच्छा हुआ, इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ कि हमारे कुछ मित्र बोल रहे थे कि मैं सीट के नीचे अपने ऐसे हाथ दबा के बैठा था। आपने मना कर दिया था क्लैप करने के लिए, अच्छा। लेकिन मैं ऐसे हाथ को नीचे दबा के बैठा था क्योंकि मन कर रहा था क्लैपिंग करने का। तो ये भी एक्सपीरियंस हुआ है हम लोगों को। एंड इट्स नाइस टॉकिंग टू यू, रोनी। Now, lovely talking and seeing both of you. And जब आप फिर आएंगे लंदन, तो मैं आपको देखने आऊंगा और सुनने आऊंगा। Sure. Take care. Lovely to see you. Bye bye. Bye. I have a long list to go through, but I think I will have to shorten it. But उसके पहले मैं अब बुलाना चाहती हूँ हमारे जाने माने शायर श्री पवन कुमार जी, जो कभी सहारनपुर में हमारे जिला अधिकारी साहब थे। इस महफिल में आपका स्वागत है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और गुरुजी से कुछ अपनी दास्तान कहें और उनसे कुछ सुने। पवन जी, आर यू देयर? Seema ji, I'm not able to find Pavan ji. So, Pavan ji, is it? Yeah, he sent me a request. Just I am not able to find him and he won't be able to unmute himself. So, I have to do if it. you can raise your hand, just in case if there is a different name on your device. Pavan ji, आपकी डिवाइस पे आप ही का नाम है क्या? चलिए, let us figure that out, and let us move forward to Pankaj Mehra ji from Ontario again, Oakville. Wow. Yeah, or I have been recently introduced to him, and I know that he has an acquaintance with Guruji's, and which goes a long way. Over to you, Pankaj ji. Can you please come on screen? Thank you very much, Seema. राजन जी, साजन जी, नमस्कार। नमस्कार पंकज जी। बहुत अच्छा लगा, आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, जूम पे हो रही है, लेकिन कम से कम आपकी बातचीत सुनने का बहुत आनंद आ रहा है। हमारा तो पीछे 2-3 बार मिले हैं, जब भी आप टोरंटो आए हैं, आपका मैंने कॉन्सर्ट अटेंड किया, और अभी सुबह ही मैंने रिक्वेस्ट किया, मोहम्मद खाकी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, रागमाला सोसाइटी के, लता पदा जी भी हैं। तो मैंने जो 2-3 क्वेश्चन मैंने पूछने थे वो पहले ही लोगों ने पूछ लिए हैं, तो मेरे पास तो खाली शब्द आपको शुक्रिया कहने के अलावा और कुछ खास बचा नहीं है। बस एक छोटा सा क्वेश्चन है जो सीरियस टाइप का नहीं है, थोड़ा मस्खरी वाला है। वो ये कि आप कह रहे थे कि साजन जी जब आपको खाना खिलाते हैं बढ़िया बढ़िया, और वो कह रहे थे कि रात को 11 बजे मूड बन जाता है तो तब खाना बनता है, तो खाना खा के बरगद के पेड़ के नीचे से जब उठ के आप सोने चले जाते हैं, तो सुबह उठ के रियाज कैसे शुरू होता है? फिर क्या चीज आपको वापस लाती है उस माहौल में, और आपका फिर जो है जुड़ना होता है ऊपर वाले के साथ और सुर के साथ? और मेरी तो अब उम्र ऐसी हो गई है कि वो नॉलेज तो ग्रहण नहीं हो सकता क्लासिकल म्यूजिक का, अंडरस्टैंडिंग जरूर इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आपका बहुत मजा आता है सुनने का, जहाँ पे भी रिकॉर्डिंग मिल जाए, कॉन्सर्ट हो। तो एक मैंने ईमेल भी किया था बहुत साल पहले, आपने बड़ौदा में एक प्रोग्राम किया था 2008 में, उसकी लाइव रिकॉर्डिंग कहीं से मेरे हाथ लग गई थी। उसमें आपने बाबुल मोरा गाया था। अच्छा। और आपको मैंने ईमेल एक भेजा था कि मैं ड्राइव करके सुबह 6 बजे ऑफिस जा रहा था अपने घर से, मैं सारा रास्ता सुनता गया वो, और पार्किंग लॉट में रुक के जब तक खत्म नहीं हुआ वो सुनता रहा, और आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे और साजन जी ने उसके अंदर रिकॉर्डिंग के अंदर बड़े
तन्मयता के साथ ये शब्द कहे कि आज तो सुनने का ज्यादा मजा आ रहा, गाने का मूड नहीं बन रहा। तो मैंने भी तो बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया, थैंक यू बहुत सीमा। अच्छा लगा पंकज जी, थैंक यू सो मच। अगर हमारे बीच में एक बम्बई से है किरण जलान जी, आर यू देयर ऑन स्क्रीन? उनके यहाँ कुछ एक छोटा सा हादसा हुआ था, बट शी वाज वेरी कीन टू इंटरैक्ट विथ यू। किरण जी, आर यू देयर? किरण जलान फ्रॉम बॉम्बे। I don't think Seema ji that she's हाँ, joined. there was a recent, she just messaged me कि please call out my name. I will, because there was some accident in the family. Okay. So, There are मेरे पास so many faces I can see here from here. Yeah. Madan ji is there, Mandakini is there, Poonam is there, Kanika also there, Ritu also there. I'm getting personal messages on my phone that रीवा can भी, they रीवा कहाँ है? कहाँ है? How are you, बिटिया? अनम्यूट है अभी। बहुत सारे लोग। मैं म्यूट पे थी, वो म्यूट हट नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है सब? जी सब ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू। जी, तो thank बहुत you. सारे लोग दिख रहे हैं और सबसे बात करना शायद पॉसिबल नहीं है, और इसलिए सीमा जी एक एक करके बुला रही हैं, लेकिन हम लोग सबको जिनको जिनको देख पा रहे हैं उनको उनको हमारा बहुत बहुत नमस्कार, और जो छोटे हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत धन्यवाद गुरुजी। सोनाली भी दिख रही है, जी। और ये सौरभ दिख रहे हैं बनारस से। हाँ हाँ, I think मोहम्मद रितेश दिख जी। रहे हैं। खुश रहो सब लोग। तो जिसको जिसको थोड़ा छोटा क्वेश्चन पूछना हो, सीमा जी से बात करके थोड़ी छोटे संक्षिप्त रूप में बातचीत कर सकते हैं। तो और एक और चीज है सीमा, कि जी, जिसके जी। लिए हम लोग आज मिले हैं, वही मैं बोल रही थी। वो जो भजन गाने का है सब लोगों को, जी, जी, उसकी भी जी। चर्चा कर लेनी जरूरी है। बिल्कुल, आपसे बातचीत करना तो हम लोगों की मतलब हम कभी भी नहीं सोच सकते कि आपसे बातचीत बंद करी जाए, बिकॉज़ इट इज़ लाइक अ नेक्टर, इट इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन। आपकी हर बात में इतना रस घुला हुआ है कि हम तो आपसे लगातार जितना संगीत आपके साथ हम एन्जॉय करते हैं गुरुजी, बातचीत भी हमें उतनी ही रोचक लगती है। तो आपकी क्या सजेशन है? आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे पास तो बहुत सारी रिक्वेस्ट्स हैं। मोहम्मद खाकी जी भी हमारे बीच में हैं। आप और मेरे लिए तो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि मैं किनको बोलूँ कि वो आपसे बात करें। खाकी जी से जरा नमस्कार करवा दीजिए। खाकी जी अच्छा। is a very very good friend of us. Yes, He's a very dear friend. and so knowledgeable and very very nice person and excellent. very dedicated to music. खाकी जी नमस्कार। Namaskar, Pandit ji, Rajan ji, Sajan ji. So lovely to be with you here. Yes. Yeah. How are Can you hear me? Yeah, Yes, I'm very well. I'm very well. Thank you so much. I heard that you were not good some months ago, and some surgery and something went. Yeah, everything went well. I had a total hip replacement. Good. So I'm good to come to Goa again with you Yeah. this year, inshallah. We are doing a workshop in Bhavnagar this time. Yes, I heard about that. So Saloni ji must have told you. She did. It's a very limited number of students are going there. But next time, whenever we will do something, we will let you know, and you have to come. Yeah, absolutely. You know, you were talking earlier about being in Corbett, etc. And last year's session of the Malhars in Goa were actually life-changing for me. I have to say that. Like, I'm not a musician. I am just an admirer and lover of music. But it's truly a phenomenal experience to be with you
both. And unfortunately, at that time, Sajanji had to leave in a couple of days. Yes. But even spending 5-6 days in that environment with your students, I also see Seemaji here and Pankaj and a whole bunch of people that I met. Roopji and Sonaliji were there too. Yes. It was absolutely sensational, and I say life changing because Panditji, when you talk about your life and your music, your discussions are so unique in the sense that the way you articulate your philosophy towards the music, even just now when you talked in response to Anuji about how she should start singing her music, I think what you bring to the insights you bring in your answers and in your anecdotes are so valuable that even for a non-musician, I feel that I learned so much from you. Thank you. Yeah, so thank you so much, and I truly appreciate what you are doing for music. At Ragmala, when you came, it was such a blessing for us. We were able to use one of that recording, and I think that's still available, of you singing Sri Rag, Yes. which was absolutely sensational. And that is, I think, available on the Aga Khan Museum website where you performed. Right. So thank you so much, Panditji, and thank you, Seemaji, for inviting me to speak. Oh, Thank that's, you. Thank you. that's so Pankaj. nice of you to Thank you, make Pankaj. an appearance. Thank you so much for making this appearance. Now I feel I am truly apologize with all those who are not able to interact with Panditjis, because I feel this kind of a thing needs to have a part two to it also, yeah, because ये प्यास, ये थर्स्ट तो रह ही जाएगी, बहुत लोगों की रह जाएगी। और जैसा कि मैंने सबको पहले खबर करी थी कि ये थोड़ा सा एक यूनिक कॉन्सेप्ट, दिस इज अ लिटिल एक्सपेरिमेंट दैट वी आर ट्राइंग this time, living in this virtual world, and अपने गुरुओं से, अपने संगीत मेंटर्स से हम इतना फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, तो और हमारे गुरुजी ने they've been kind enough, very generous to have thought of this, and they have agreed to impart one of their very prestigious compositions with us. So this is a little experiment that we are trying today. And इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ. I just want to walk you through the whole procedure. Now, today we are going to be learning this composition, and उसके बाद we will all reconnect on the 19th of, this is coming Saturday, with a practice session where Panditjis are not going to be there, but we will focus only on the practice. एंड देन उसके बाद हम ट्रैक तो आपको कल और परसों में ही भेज देंगे, और फिर उसके बाद आप लोग जब ये सीख लेंगे 19 तारीख को, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके हमको एक गिवन टाइम में रिकॉर्ड करके मोबाइल पर आप हमको वो गाना भेजेंगे, और देन अगेन गुरुजी की गाइडेंस में उसकी मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करवा करके हम आपको भेजेंगे फिर फॉर योर लिप सिंग फॉर अ वीडियो रिकॉर्डिंग. So I hope everything is clear on this, and there will be a final release on 10th of January, जब हम सब मिलकर के और संगीतमय चर्चा एक बार फिर से होगी, और वर्ल्ड वाइड रिलीज हमारे उस कॉम्पोजिशन का होगा. This is an experiment. I want everyone's participation, and I want this experience to share with all of you. So now over to Swaransh.